afternoon, everyone. Hi. Welcome to the second session of AILF. It's titled Transforming Village Lives, Notions, Emotions and Innovations. Our panelists for this session are Shri Manoj Agrawal, Shri Pravash De, Dr. Hira Lalji, moderated by Shri Uma Shankar Yadav. I would like to request the speakers to please take their seats on the stage. Shri Manoj Agrawal here is an IAS officer of the Gujarat Cadre who has worked in various important positions in the state. He currently serves as the Additional Chief Secretary, Social Justice and Empowerment Department in Sachivalaya, Gandhinagar. We welcome you, Manoj. Shri Pravash De is a social entrepreneur, mentor and philanthropist. He is the founder of US India Blockchain Council, Mobile Technology Park and Enterprise India Foundation. We'd like to show a small video from Shri Pravash De. Welcome, sir. आप सभी लोगों का एक बार फिर से अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के 6वें एडिशन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये सेशन हमारे दिल के करीब है। भारत की आत्मा गाँव में रहती है और हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से गाँव से कनेक्टेड रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के काफ़ी हिस्से गाँव में गुजारे हैं। आप इस बहुत सारी बातें आगे करेंगे। और सबसे पहला सवाल हमारा डॉक्टर हीरा लाल। You have the passion for what you're doing because it is a very lonely job starting up a company. So you have to have that passion. Absolutely keep discipline and rigor on everything you do, not only in the way you do your work, but the way you look at your company to make sure you're making the right decisions. Be very, very metered in your growth goals. Don't try to overgrow. Don't try to make bad assumptions. Take investment dollars as a last resort. Try to do as much as you can internally. Your investors can be some of your greatest partners, but they can also be one of your greatest challenges when you go forward. We need to kind of improve policies between various nations so that if there is a legal issue that arises, that there's ability to mitigate those well. I think also making sure that Indian companies really very solidly show that they are good stewards of information and data. Organizations like the IAMI, they can be your advocates. Tackle a topic, you should approach and be part of these various support organizations depending on what type of industry you're on. Find partners in those areas that give you that bedrock to work with so that you can grow within that market smartly and scale smartly. Dr. Hira Lalji here has served in many positions at the government of Uttar Pradesh. Currently, he is the Additional Mission Director, National Health Mission UP, and Additional Project Director, UP State AIDS Control Society. We'd also like to show you a small video here from Dr. Hira Lalji. भारत देश गांव में बसता है, लेकिन एक सच ये भी है, हमारा देश ही हमारी देह है और हमारा गांव हमारी आत्मा है। आखिर ऐसा क्या हुआ
कि गांव में रोजगार के साधन कम हुए, लोगों की आय घटी, हमारे लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ क्यों गए, सोचने का विषय है। आज जरूरत है गांव को शिक्षित, समृद्ध, स्वस्थ बनाने की। मॉडल गांव विलेज मैनिफेस्टो उसी बदलाव की बात करता है। खेती किसानी को एक व्यवसाय में बदलकर ग्रामीणों को विकसित करके जागरूक करना है। उपज का सही दाम, हर हाथ को काम, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जमीन, बेहतर सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने के लिए मॉडल गांव का हिस्सा बने। जल, जंगल, जमीन, उसको अगर एक जमीन को छोड़ दीजिए तो पेड़, पानी, जल और जंगल, ये आम आदमी की जरूरत है। पानी आम आदमी की जरूरत है और जो पेड़ है जो हमें ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है, वो हर आदमी की जरूरत है। हर गांव में अच्छे लोग हैं जो अपना नुकसान करके भी दूसरे की भलाई करते हैं। ऐसे लोगों का हम लोग चयन करेंगे और उनको जहां भी गांव में अच्छा काम हुआ वहां भेजेंगे। उन्हीं सब लोगों के कंट्रीब्यूटरी पैसे से भेजेंगे, उनके दिल और दिमाग को खोलेंगे, जिससे कि वो देख के सीख सकें कैसे दुनिया में गांव में बदलाव आया है, मॉडल गांव बने। मॉडल गांव एक ऐसी सोच, एक ऐसी व्यवस्था जहां हर घर, हर देहरी खुशहाली लाएंगे, हम सब मिलके अपना गांव बनाएंगे। मॉडल गांव, ग्रामीण विकास, एक नई सोच, एक नई पहल। Our session moderator, Shri Uma Shankar Yadav, is the founder and director of AILF, which began in 2016. He's also the managing trustee of Icon Education Foundation, which promotes literature, art, education, culture, and sports. Over to you, Uma Shankar ji. थैंक यू मानो। हीरालाल साहब, अगर हम आपसे पहला सवाल ये पूछे कि ये जो जब आप मॉडल गांव की कल्पना करते हैं तो मॉडल गांव क्या है आपकी नज़रों में? आपने कहीं मॉडल गांव वैसे पहले देखा है या अभी आपके सपनों का गांव है? देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उमा शंकर जी ने मुझे यहाँ जो बुलाया, हम लोग ट्विटर पे यहाँ आए हैं और हमारी इनकी बात 2-3-4 दिन पहले हुई और मैं यहाँ हूँ, तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि अभी बात चल रही थी कि अच्छे चेहरे होने चाहिए और तरन्नुम भी अच्छा होना चाहिए तो मुझे यहाँ सब चेहरे अच्छे दिख रहे हैं, तरन्नुम भी अच्छा है। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अभी मैं इनके बात का जवाब नहीं दूंगा, ये साहित्य, लिटरेचर और गांव का क्या लेना देना मेरे दिमाग में अभी जैसे सर बोल रहे थे कि जब ये इनके पास गए तो पहला क्वेश्चन था कि लिटरेचर फेस्टिवल का, वो भी इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का, समाज सोशल जस्टिस से क्या लेना देना। तो मेरे भी दिमाग में ये बात आ रही कि गाँवों की बात यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल से क्या लेना देना है। क्या मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप इंडिया की 70% आबादी कहाँ रहती है? गांव में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का गांव में, भले शहर में रहते हैं, आपका दिल, दिमाग और सोच गांव में, जमीन होगा, ननिहाल होगा, बहुत कुछ होगा। कितने लोगों ने गांव पे किताब पढ़ी है? जरा हाथ उठाइए। गांव पे, गांव से रिलेटेड कोई किताब। चलिए, तब भी 2-4-6 लोग मिल गए। तो जब 70% हमारी आबादी गांव में रहती है और उस पर लिटरेचर ना हो, यह दुर्भाग्य का विषय है कि नहीं है? है। तो हमें गांव पर अब लिटरेचर तैयार करना चाहिए कि हमारा गांव पहले था वो ठीक था या जो अब हम परिवर्तन गांव में किए अब ठीक है। पहले, मेरा व्यक्तिगत मानना है, पहले का गांव खुशहाली और हरियाली देता था, अब वो खुशहाली हरियाली गांव में घटी है। एक बात तो इसका रिलेवेंस है, गांव पे लिटरेचर किताब के रूप में होना चाहिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैं वहीं बैठ के इस पर गूगल देवता से बात कर रहा था। हमने कहा मुझे कुछ म्यूजियम बताओ गांव के, तो मुझे अमेरिका के 2-4 म्यूजियम तो गांव के हाल, काम करने वाला खुरपी, खोपड़ा, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती थी,
इंडिया में आप लोग बताइए, यहाँ अहमदाबाद में गांव का कोई म्यूजियम है? है लेकिन, हाँ लेकिन आपके यहाँ तो है, मेरे यूपी में लखनऊ के, हाँ हम लखनऊ कैपिटल से आते हैं, और यूपी का जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। ये चूंकि अहमदाबाद है इसलिए है, लेकिन मैक्सिमम जगह नहीं है। तो जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, वो उसके बारे में हमें म्यूजियम टाइप का, बुक टाइप का, लिटरेचर टाइप का कुछ डेवलप करना चाहिए। ये इसका लिंक है गांव से, ये मैं बताना चाह रहा था। एक बात, आपके बात का क्वेश्चन बहुत पॉइंटेड बात करूंगा, क्योंकि हम लोग तो बोलते रहते हैं, आईएएस अफसर का काम ही ये बोलना है ना, तो हम बहुत बोलते हैं, तो मैं लेकिन यहाँ कम बोलूँगा। देखिए ऐसा था, मैं कलेक्टर था, मैं किसान का बेटा हूँ, गांव में रहता हूँ, तो किसानी मेरे खून में, सोच में और हर दिल दिमाग में है। जब मैं कलेक्टर रहा 1.5 साल, तो मैंने जिस जिले में था, बांदा में था, वहाँ मैंने बहुत सारे गांव को लेके प्रयोग किए। वो प्रयोग मेरे सफल रहे, और उसी को ऑर्गेनाइज्ड वे में ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट, हमारे एक मित्र हैं, वो नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम हैं, वो इसको चला रहे हैं, वो उसके प्रेसिडेंट हैं। मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूँ, क्योंकि ये मेरे 1.5 साल के काम पर आधारित है। उस जनपद का नाम बांदा है। हम लोगों ने 1 मीटर 34 सेंटीमीटर वाटर टेबल बढ़ाया, पानी बहुत दिक्कत थी। जेल को नंबर 1 किया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ाई, डेमोक्रेसी को मजबूत कर, सोशलाइजेशन को ठीक करने के लिए हाईएस्ट परसेंटेज बढ़ाया लोकसभा में। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ इस मॉडल गांव को बनाने के लिए और इसको चलाने के लिए। मेरा पैशन है, और इसको मैं छुट्टी के दिनों में ये पैशन करता हूँ। अग्रवाल साहब, मेरा आपसे सवाल है, जब ये हीरालाल साहब मॉडल गांव की कल्पना करते हैं, तो ये कल्पना करते हैं कि वहाँ पे सारी सुविधाएं हों, उनके प्रोड्यूस को मंडियों तक पहुँचे, उनको उचित दाम मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक चेंज मेकर्स हो वहाँ पे, और ऐसी सारी व्यवस्थाएं हों जो गांव के कल्चर को मेंटेन करते हुए शहरों की भी कुछ सुविधाएं, जैसे शौच की सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें हों। तो फिर भी आपको आपके जीवन में रोज़ नए नए केसेज आते रहते होंगे। आपको कभी ऐसा लगा कि बिकॉज ऑफ सोशल जस्टिस किसी वर्ग की आर्थिक स्थिति या जाति या धर्म की वजह से उसका विकास ना हो पा रहा हो, या पूरे गांव का विकास ना हो पा रहा हो, ऐसे कुछ केसेज आते हैं कभी आपके पास, और फिर आप क्या करते हैं उनमें? सबसे पहले तो जो इससे पहले सेशन हुआ वो क्रिएटिविटी और इस पे हुआ। अब उसके एकदम बाद हम लोग एक ग्राम विकास की बात पे आए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शिफ्ट जो है वो एकदम सडन शिफ्ट है, बट स्टिल इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। और उसमें जानने के लिए, समझने के लिए एक दूसरे से, हमें भी और सबको एक दूसरे से समझने को मिलेगा। और मैं ख़ास तौर से गुजरात के बारे में शायद ज़्यादा बोल पाऊँ। हीरालाल जी यूपी के बारे में बोल रहे हैं, तो गुजरात और यूपी के जो गांव हैं, ग्राम्य सिस्टम है, ग्राम्य इकोसिस्टम है, उसमें फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। आज हम अगर गुजरात की बात करें तो करीब करीब 50% जनता जो है वो शहरों में आ चुकी है, करीब 50%। शायद यूपी में ये अभी भी परसेंटेज 30 के आसपास है, जैसे आपने बोला, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो पंचायत सिस्टम है गुजरात में, वो भी 1960 से चला आ रहा है पंचायत सिस्टम, और ये पंचायत सिस्टम आज काफ़ी मजबूत हो चुका है और मजबूत करने की ज़रूरत है। यूपी में ये सिस्टम काफ़ी बाद में शुरू हुआ, उसमें एक अलग सिस्टम से ये काम चलते रहे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किसी न किसी रूप में हो रहा होगा। पर यहाँ पे जो ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और ज़िला पंचायत, और सबसे पुराने यहाँ के जो है 1961 का एक्ट जो है गुजरात का एक मॉडल एक्ट माना जाता था, जो बाद में 1993 में रिवाइज़ हुआ, और उसमें और ज़्यादा जो है उसके अंदर चेक्स एंड बैलेंस के साथ ग्राम पंचायतों, ज़िला पंचायतों, तालुका पंचायतों को और मजबूत किया गया। तो अब ये जो
पूरा अब ग्राम विकास की बात करें तो ग्राम विकास में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, उसकी बात है, जिससे कि उनको शहरों में जो लगता है कि ये सुविधा उपलब्ध है, ये सुविधा उपलब्ध है, पीने का पानी उपलब्ध है, नल में आता है, तो अब स्वास्थ्य की सुविधा है, पास में जाइए डॉक्टर है, रोजगारी के साधन ज़्यादा हैं। ये माना जाता है कि शहरों में जो जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जीडीपी, वो गांव के जीडीपी से बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोगों का ये भी उसमें एक कहना रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरीकरण हो तो उसमें और अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जीडीपी हर हालत में बढ़नी है। लेकिन हम अगर इसको जोड़ें, जो आज से वर्षों पहले हमारे जो बड़े महान नेता, महान आत्मा लोग, जैसे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो विलेजेस में है, गाँव में है। तो हमको गाँवों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। लेकिन क्या सेल्फ सफिशिएंट ऐसे बनाना है कि बिल्कुल हम शहरों से उनको काट दें? तो नहीं। तो उसकी जो सारी व्यवस्था जो है एक दूसरे से जुड़ी रहे और गांव के लोगों को विकल्प मिले, स्वतंत्रता मिले। अभी आपने एक मार्केटिंग की भी बात करी कि जो वो उगाए, जो वो पैदा करे। तो गुजरात में तो वैसे ही कैश क्रॉप बहुत ज़्यादा हैं, सस्टेनेंस क्रॉप बहुत कम है। यहाँ पे चावल, गेहूँ और ये है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। कैश क्रॉप बहुत ज़्यादा है, टोबैको है और दूसरे अन्य ग्राउंड नट है, कॉटन है, तिल है और भी इसी तरह के कैश क्रॉप्स हैं। तो उन सबको लाके कहाँ एक यहाँ पे एपीएमसी का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उसकी जगह अब उनको और स्वतंत्रता जो नए लॉ बने हैं उनमें मिलेगी, जिसको लेके काफ़ी अर्बन एरिया, पानी, बिजली, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह, उनको स्वास्थ्य की सुविधा। और इससे क्या होगा कि उनके दिल में हमेशा ये रहेगा, शिक्षण की सुविधा, उनके दिल में ये रहे कि मेरे यहाँ का जो बच्चा है, जो क्योंकि उन्होंने तो जो किया वो किया, पर आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो कंधे से कंधा मिला के वो सब सीखें, समझें और उस अपॉर्चुनिटी को गांव की प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने कुटुंब की प्रॉस्पेरिटी के लिए और अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज़ करें, क्षमता पूरी आए। वो सबसे एक मेन बात है। प्रवास जी, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की, क्योंकि जब भी मनोज साहब ने या हीरालाल साहब बात करते हैं तो देखिए बिना टेक्नोलॉजी के हम गाँवों को मॉडल नहीं बना सकते। आज के टाइम में पुराने टाइम वाली बातें अलग थी, क्योंकि आज गांव में जब तक आप सभी सुविधाएं नहीं देंगे, क्योंकि वो जो पुराना सिस्टम था कि एक पर्टिकुलर से जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जैसे जो लोहा का काम कर रहे हैं लोहा करेंगे, जो बढ़ई का काम कर रहे हैं वो करें, वैसा नहीं रह गया है। इस टेक्नोलॉजी ने, डेवलपमेंट ने सबको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, सभी बिजनेस कर रहे हैं, सभी जॉब कर रहे हैं, सभी खेती कर रहे हैं, सभी हर तरह कर रहे हैं। तो उसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा योगदान है और आप क्या कर रहे हैं उसमें, गाँवों को कैसे आत्मनिर्भर बनाने में आपकी जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है और आपका जो ब्लॉकचेन सिस्टम है वो कैसे मदद करेगा? और हीरालाल जी का जो मॉडल गांव है वो उसमें आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ बैठती है? सर पहले तो आई वांट टू क्लियर वन थिंग, लाइक डेफिनेटली जो सर ने बोला कि 75% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया अभी गांव में है, बट अभी मैं एक क्वेश्चन सिंपल, कितने लोगों के पास यहाँ पे स्मार्टफोन है? कितने स्मार्टफोन्स ऑलरेडी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है? राइट, द स्मार्टफोन विदाउट इंटरनेट देयर इज नो मीनिंग। सेम चीज़ जस्ट 2 दिन पहले जब आईटी मिनिस्टर साहब ने जब पूरा सोशल मीडिया का एक मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि एक्चुअली जो फिगर्स है अभी इंडिया में 330 मिलियन स्मार्टफोन्स है, अराउंड 500 मिलियन इंटरनेट कनेक्शंस है, चाहे वो स्मार्टफोन के थ्रू हो चाहे वो डेस्कटॉप घर पे हो। तो अगर ये डेटा को सिर्फ देखेंगे और उसको आप कंपेयर करेंगे कि हमारे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है यहाँ पे, देयर आर अराउंड 53 करोड़ पीपल आर कनेक्टेड इन व्हाट्सएप, around 43 crore people who are using YouTube daily basis to upload videos, sharing videos and stuff. Around 44 crore near about people are there in Facebook. तो ये हमारे something 1.36 around 2 crore लोग are in Twitter. अगर ये हमारे सोशल कैपिटल है, तो अगर आप गांव के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल जो माइंड से जो ऑलरेडी गांव से जाके शहर में रह रहे हैं,
उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, दे आर इनटू बिजनेस, बट दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन विलेजेस, सो दैट इज़ अ डायरेक्ट लिंक। एंड वो लिंक रेगुलर बेसिस में वो गाँव नहीं आ सकते, वो इंटरनेट के थ्रू में गांव के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। एंड पर्टिकुलरली ये कोविड के बाद जो लॉकडाउन हुआ वो हमें सिखा दिया कि ई लर्निंग इज़ नाउ द नेक्स्ट बूम। ऑलरेडी डबल डिजिट में हमारी ग्रोथ चल रही है। लॉट ऑफ एडटेक कंपनीज है जो ऑलरेडी एक्वायर हो चुके हैं। एंड अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन पॉलिसी है वो हर गांव के पास पहुंच रहा है। तो जितने सारे अभी पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रहे हैं, चाहे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स बना रहे हैं, तो सारे टेक्नोलॉजी के थ्रू में ही ग्रोथ होगा। सो हमें दो चीज़ चाहिए यहाँ पे कि जितने गांव पे लोग रहते हैं उनको हमें एक तो एजुकेट करना पड़ेगा, सेकंड है कि उनको एक एफिशिएंट सिस्टम देना पड़ेगा। सो एफिशिएंट सिस्टम मतलब यही है कि उनके पास डेस्कटॉप पहुंचना चाहिए, उनके पास कंप्यूटर पहुंचना चाहिए, और उनके पास स्मार्टफोन पहुंचना चाहिए, उनके पास इंटरनेट पहुंचना चाहिए। ये चाहे हम पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू में कर सकते हैं, ये हम पर्सनलाइज्ड बेसिस में भी दे सकते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन ऐसे है कि आज जैसे आप देखेंगे श्रीनगर में पहली बार 370 ये होने के बाद दे हैव ए पब्लिक लाइब्रेरी, तो ऑलमोस्ट 20 to 25 डेस्कटॉप सारे लाइब्रेरी में है, और गांव के लोग आते हैं वहाँ पे, दे एजुकेट देमसेल्व्स, वहाँ पे जो लाइब्रेरियन है वो पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप लिटरेचर के साथ भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, एंड इट्स ए कोलैबोरेटिव एफर्ट। सेम चीज़ हम लोग हर गांव में अंदर कर सकते हैं। एंड अभी जो हो रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन सिर्फ अगर आप देखेंगे तो मोस्टली Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में हो रहा है। नाउ इट हैज़ गॉन थ्रू 3 cities एज वेल। बट अगर सेम चीज़ आप एक एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल या तो स्टार्टअप स्कूल हम हर गाँव में क्यों नहीं खोल सकते? थैंक यू वेरी मच। वी विल कम टू सेकेंड राउंड। टेक्नोलॉजी के बारे में अभी आपने कहा, तो गुजरात के बारे में मैं जस्ट थोड़ा सा वेरी ब्रीफली, गुजरात के हर विलेज को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का काम ऑलरेडी 60% के करीब हो चुका है, और हर विलेज में जो ब्रॉडबैंड जोड़ा जा रहा है वो ओपन होगा पब्लिक के लिए, और ग्राम पंचायत और उसके अलावा 4-5 और कनेक्शन जो जैसे दूध मंडली होगी या सहकारी मंडली होगी उस तक वो दिया जाएगा। और सारी की सारी स्कीम जो गवर्नमेंट की होंगी वो ई ग्राम केंद्र जो हर ग्राम पंचायत में है, जैसे अभी मैंने अपने विभाग की 50 स्कीम्स पिछले 1 साल में उनको सबको ऑनलाइन कर दिया, और उनको डिजिटल सेवा सेतु जो हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके साथ जोड़ के ये 50 स्कीम का वो बैठ के अप्लाई जो है ई ग्राम सेंटर से विलेज में से कर सकता है। तो वो ई ग्राम में जो ब्रॉडबैंड जो पहुंच रहा है दैट विल रिवॉल्यूशनाइज द होल कॉन्सेप्ट, दैट विल आल्सो प्रोवाइड, ऑफ कोर्स जो बाकी आपने कहा वो भी उनको देना पड़ेगा, जो इंडिविजुअल उनको है कनेक्टिविटी वो भी देनी है, लेकिन ये जो ब्रॉडबैंड पहुंच रहा है और 31 मार्च तक ये काम 100% होने की उम्मीद है, 31 मार्च 2021 तक। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट राज्य सरकार का मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा है। तो जस्ट मैंने कहा क्योंकि बात चली है टेक्नोलॉजी की इसलिए मैं बता रहा हूँ। हीरालाल साहब, अगर हम बात करें मॉडल गांव की, जब आप से अभी मेरा पहला सवाल भी वो था और उससे रिलेटेड ये है कि आपके मॉडल गांव में जो पुराना ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था वो रहता है, आपके कॉन्सेप्ट में है, या पूरा रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, मतलब कोई ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो नहीं करना है? अगर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पूरा क्योंकि आईटी और सोशल मीडिया ने सबको बराबर कर दिया है, सब लोगों को सब चीज़ एक्सेस है, सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपके मॉडल गांव में आप क्या कल्पना करते हो कि सब लोग, सभी वर्ग, सभी तरह के लोग, चाहे कम इकोनॉमी वाले हैं चाहे ज़्यादा वाले हैं, सब एक तरह के हों? और इसको करने में आपको क्या चैलेंजेज आते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का आता है, या जो अभी हमारे 1-2 वक्ता वाजपेयी साहब कर रहे थे, जो परसेप्शन वाला मामला है, जो धारणा है कि नहीं ये इस तरह का व्यक्ति है तो वो वही कर सकता है, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये कुछ आड़े आती हैं क्या आपके उसमें? और इसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कर रहा हूँ कि आप सारी बातें बता सकें। आपके जो चेंज मेकर्स है जो आप सिलेक्ट करते हैं वो कितने एफिशिएंट हो रहे हैं? आपको कहाँ दिक्कतें आती हैं ये करने में? क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है हम पूरे भारत में देखना चाहते हैं या कि पूरे विश्व में देखना चाहते हैं, जहाँ पे सारे गांव मॉडल हों।
देखिए अभी आपका जो क्वेश्चन है, देखिए पुरानी जो हमारी बहुत सारी चीज़ें थीं उसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी थीं और बहुत सी चीज़ों को अमेंड करने की ज़रूरत थी। तो हमारा ये जो पुरानी अच्छी चीज़ें थीं उसको भी लेंगे और जिस पुरानी चीज़ को अमेंड करने की ज़रूरत है उसको मॉडिफाइड अमेंडेड फॉर्म में लेंगे और जो चीज़ें नहीं थी और आज की डेट की ज़रूरत है वो सब लेंगे। इट इज़ ए मिक्स मॉडल, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी जो हमारे यहाँ गवर्नेंस की बहुत प्रॉब्लम है। हमारा एक व्यक्तिगत मानना है कि नंदा सर बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, हम लोगों का हर जगह दखल है IAS अफसर का। क्या हम कानून बनाते भी हैं और कानून लागू भी करते हैं और गवर्नेंस ठीक नहीं हो रहा तो जिम्मेदार कौन है? बेसिकली जिम्मेदारी हमारी है। हम तो इसी तरीके से सोचते हैं। ये पूरी जिम्मेदारी को मैं एज ए IAS अफसर ओन करता हूँ। क्या जिले का मुखिया DM है, अगर वो फेल हो गया, वहाँ गवर्नेंस खराब है तो कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं। अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो आप DM बनते क्यों हैं? ये गवर्नेंस का जो प्रोसेस, जो मैंने इसको मेरा ये सोच था, इसका मैं जवाब ढूंढ रहा था। गवर्नेंस में दो चीज़ होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हमने अपनी पूरी गवर्नेंस हार्डवेयर पे कर दी, सॉफ्टवेयर किया ही नहीं। तो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसको एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को समझाना चाहूँगा। हमारे बांदा के जनपद में पानी की कमी थी। वहाँ पानी ना होने से शादी लोगों की नहीं होती थी क्योंकि गरीबी था। अब मुझे बांदा के पानी की समस्या को हल करना है और अगर हम सरकार से पैसा मांगते नहीं मिलता, तो हमने क्या किया, जन सहभागिता बढ़ाई। पहले क्या था, DM आगे चलता था, जनता पीछे चलती थी। हमने ये फिलॉसफी बदली। हमने कहा जनता आगे चलेगी और DM पीछे चलेंगे। तो हमने लोगों को पहले हमने कुआं तालाब नदी वदी पे खोदने खादने नहीं गए। हमने एक माहौल क्रिएट किया कि पानी कहाँ रहता है, कुआं तालाब नदी में रहता है। कुआं तालाब नदी कहाँ पाया जाता है? आपके गांव में पाया जाता। तो अगर पानी की समस्या आपके गांव में, तो समाधान आपके गांव में है। कुआं तालाब नदी पे जाओ और उसकी रक्षा करो, उसकी इज्जत करो, उसकी सफाई करो, पानी मिल जाएगा। धीरे धीरे उसके बहुत सारे टेक्निक्स अपनाए और बहुत सारे तरीके से उनका सॉफ्टवेयर चेंज किया। मैं ये कहता था कुआं तालाब, हम मतलब मेरा एक नारा था जिसको कि हम कुआं तालाब नदी जमीन पे खुदे सफाई हो, ये मेरे लिए माने नहीं रखता, लेकिन मैं लोगों के दिल और दिमाग में कुआं तालाब और नदी खोदना चाहता हूँ। लोगों के दिल और दिमाग में और सोच में, खून में कुआं तालाब खोदना चाहता हूँ। अगर ये बात हो गया तो कुआं तालाब तो फिजिकली खुदेगा ही खुदेगा। और यही काम मैं मॉडल गांव में भी करने जा रहा हूं। गांव मॉडल, सड़क अच्छी हो जाए, स्कूल अच्छा हो जाए, लोग गोरे हो जाए काले से, ये मेरा मकसद नहीं है। लोगों के दिल और दिमाग और सोच में मैं ये मॉडल गांव पैदा करना चाहता हूं। उसका क्या, मैं चाहता हूं सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए हीरा साहब के लिए, क्योंकि यही है हमारे गाँव को शहरों से अलग करने वाला। ये गोरे काले का कल्चर, छोटे बड़े का कल्चर, ये गाँव में से निकलना चाहिए, तब जाके काम। हाँ, ये किसका दूसरे में इस बात की पुष्टि में मैं दूसरा, आज के डेट में अभी अयोध्या में, मैं बड़े बस्ती के रहने वाला हूँ, अयोध्या मेरे बगल में, इसलिए मेरा लगाव है। अभी तक मंदिर बना नहीं ना, न्यू खुदाई होगी, शुरू हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ 130 करोड़ मंदिर बन चुके हैं। कहाँ? तो जब हमारे दिल दिमाग में सोच पैदा हो गई है मंदिर की और दिल दिमाग में मंदिर बन गए हैं, वही फिलॉसफी जो पानी की फिलॉसफी है, मैं लोगों का सोच परिवर्तन करना चाहता हूँ। एक बार लोग के दिल और दिमाग में गांव और विलेज और ये सब पैदा हो जाएगा, सोच पैदा हो जाएगी, सोचने लगेंगे, सपना देखने लगेंगे। और देखिए, ये मैं कोई तीर नहीं मार रहा हूँ, मैं डींग नहीं मार रहा हूँ। आपके महात्मा गांधी जी यहीं के हैं, उन्होंने स्वराज की बात की, नहीं सुना। उसके बाद अभी लेट मरहूम APJ कलाम एक पूरा नाम की स्कीम चलाई, किताब है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू द रूरल एरियाज, वो है, वही मॉडल गांव है। ये सब थियरी है, मेरा टोटल एक्सपेरिमेंटेड फार्मूला जो बांदा में मैंने टेस्टेड एंड ट्राइड किया, उसी को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि हम क्या करें, हम कुछ नहीं करेंगे, हम खाली हल्ला करेंगे, लोगों के दिल दिमाग और सोच में मॉडल गांव बनाएंगे। और जैसे मैंने पानी में सफलता पाई, मंदिर निर्माण में सफलता मिली, वैसे मुझे इसमें सफलता मिलेगी, समय लगेगा। बहुत बढ़िया बात है। हम बहुत सारी एक बड़ी कहावत है कि अगर आप किसी को जीतना चाहते हो तो उसके दिमाग पे कब्जा कर लो। जो कैप्चर द माइंड, ऑपरेसर्स क्या करते थे, वो हमारे दिमाग पे कैप्चर, दे विल कैप्चर योर मेंटल स्पेस।
and if you capture anybody's mental space, you are the winner, because that person cannot think anything beyond you. That is what Hiral Al is trying to do, changing the mindset. सर, अगर हम बात करें आपसे, तो जनरली आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, प्रवास जी की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी पार्क, पान के गल्ले वाले छोटे छोटे ट्रेडर, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी पहुँचा रहे हैं. तो इस टेक्नोलॉजी से जो सामाजिक, क्योंकि आप सामाजिक न्याय की को देखते हैं, तो अब आपको क्या लगता है, अगर हम गुजरात की बात करें और पूरे देश की बात करें, तो इस टेक्नोलॉजी ने थोड़ी से लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार किया है सबके लिए? टेक्नोलॉजी ने बच्चे के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान किया है कि वो राष्ट्र के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भाग ले सके. उसके हाथ में, जब एक छोटे बच्चे के हाथ में भी मोबाइल फ़ोन आए, और वो भी अगर स्मार्टफोन हो, और वो समझने लगे, क्योंकि आजकल आपने बहुत से एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे टीवी पे कि कोडिंग करिए, बाइटेड जूनियर या बैजू या दूसरे 2-3, तो वो किस लिए कि कंप्यूटराइजेशन में और स्मार्ट फ़ोन वगैरह में और जाएं, जहाँ पे आपको जो है पूरे वर्ल्ड से जुड़ने का मौका मिलता है. www वर्ल्ड वाइड वेब से पूरे वर्ल्ड से जुड़ने का आपको एक जो मौका मिलता है, जो एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर इतना ज़बरदस्त है, और वो ऐसा है कि जिसको कोई रोक भी नहीं सकेगा, मैं ये भी मानता हूँ. तो वो जब गांव के लोगों के बीच में पहुँचेगा, तो स्वाभाविक है कि उनके भी इतने जो ज्ञान के रास्ते हैं, जो अभी शायद लिमिटेड हैं, शहर में पहले पहुँच जाते हैं, गांव में उसके बाद, जब एक बार पूरा नेटवर्क हो जाएगा, तो उनको भी इमीडिएटली, जैसे पहले हम कैसे बोलते थे कि हर चीज़ पहले यूएसए में आ रही है और उसके 20-30 साल बाद इंडिया में आ रही है. आज की तारीख में अगर हम कहें कि अर्बन में ये चीज़ पहले आ रही है, रूरल में बाद में आ रही है. एक बार अगर इंटरनेट जो ब्रॉडबैंड सिस्टम पूरे इंडिया में, आज भी 3G 4G 5G, अब 5G की बात हो रही है, 4G भी अभी रूरल एरिया में नहीं पहुंचा है, ड्यू टू वेरियस रीजंस. उसके अलग रीज़न है, वो यहाँ पे चर्चा का विषय नहीं है. लेकिन ये टेक्नोलॉजी के कारण हमारी, जैसे प्लानिंग का मैं एक एग्जांपल दूंगा, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, हर पंचायत, हर ग्राम पंचायत को जो 14th फाइनेंस कमीशन जो पैसा दे रहा है, जो उन्होंने काफ़ी बढ़ाया, जो इन लोकल बॉडीज़ को बढ़ाया, नगर पालिकाओं को ज़्यादा दिया, ग्राम पंचायतों को और ज़्यादा दिया, पर ईयर पर पर्सन एटलीस्ट 600 to 700 रुपीज़ हर विलेज पंचायत में पहुँचा. 15th फाइनेंस कमीशन ने वो और बढ़ा दिया, और उन्होंने स्पेसिफिक काम भी दिए कि आप पीने के पानी के लिए, जब आप भी सुनते होंगे नल से जल हर विलेज के एक घर में जाना है. ब्रॉडबैंड जो है, वो इंटरनेट की, जो मैंने कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड की बात करी, तो हर घर में ब्रॉडबैंड अवेलेबल करने की सरकार की जो थिंकिंग है, वो बहुत आगे तक पहुंच चुकी है. गुजरात की बात करें तो 50-60% तो पहुंच से ज़्यादा है, वो आगे पहुंच चुका है. प्रधानमंत्री जी ने नया जो एक किया, उसका मैं खुद पार्टनर ऐसे रहा कि मैं कमिश्नर एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, जो ओपन डिफिकेशन फ्री. अब उसके अंदर भी ज़बरदस्त हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, और लाखों जो है टॉयलेट्स सबके घरों में बने हैं. उसमें शायद पानी की कमी होने के कारण जितना उपयोग, जितना % होना चाहिए था, उससे कुछ कम हो रहा है. लेकिन अब जब नल से जल हर घर में जाएगा, जिसके लिए इस साल भी 50,000 करोड़ रुपया रखा गया है केंद्रीय बजट में, तो मैं नहीं मानता कि ये सब जो चीज़ें हैं अल्टीमेटली ये मॉडल विलेज बनाने की तरफ ही आगे बढ़ रही हैं. और गुजरात जो है, मुझे ये कहने में आनंद है, हर्ष है, गर्व है कि गुजरात इसमें जो है, इसमें भी आगे लीड ले रहा है, और इसमें आगे से आगे जाके बढ़ के जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी और हर तरह से पहुँचेगा. यूपी जैसे राज्य भी इसमें खूब आगे बढ़ रहे हैं, इसमें देयर इज़ नो डाउट. राइट सर, यस, वी कैन जस्ट सी द थिंग्स. यहाँ पे हमें दिखती हैं ज़मीनों पे. प्रभाष जी, हम लोग IT इनेबल्ड सर्विसेज वाले लोग हैं और IT में काम करते हैं. अभी मैंने देखा कि गुजरात में गाँव में भी, सर हम लोग बारकोट में हैं, तो वहाँ गाँव के कहीं खंभालिया से, तो कहीं केशोद के स्टोर्स हमारे बारकोट के लिए जाते हैं. छोटे छोटे गाँव में भी टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हैं. तो जो आप IT इनेबलर हैं, how can you become a real change makers? आपको क्या लगता है कि उसमें कहीं सरकार की, ये सरकार बैठे हैं और एक कॉन्सेप्ट हैं,
जो चाहते हैं कि मुझे पूरे गांव का कॉन्सेप्ट चेंज कर देना है, तो उसमें आप लोग एग्जीक्यूशनर हैं जो एग्जीक्यूट करेंगे सरकार की बातों को और आइडियाज़ को। आपको क्या लगता है कि जो पान के गल्ले में बैठा है या जो छोटा सा जो बेचते हैं, छोटी दुकान वाले ट्रेडर हैं, वहाँ पे आप उनको कैसे मदद कर सकते हो, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करें, उनका जो बिजनेस बढ़े, पर्टिकुलरली थ्रू टेक्नोलॉजी? आप क्या सजेस्ट करते हो? शॉर्टली विल फिनिश, शॉर्ट आंसर प्लीज। ठीक है सर। सर दो चीज़ें हैं जो हम बोल रहे हैं कि हम करने वाले हैं, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ है वो एक जगह में जाके रुक जाता है बिकॉज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो उसके वजह से वो लिमिटेड हो जाता है। तो ऑलरेडी देर आर लॉट ऑफ कंपनी, जो IT कंपनीज हैं, उन लोग internet.org बनाए हैं। सो इट्स ए फाउंडेशन जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के नाम में, IFF के नाम पे, अभी वो लास्ट माइल जो पर्सन है जो गांव में बैठा हुआ है, जिसके पास नहीं है, उसके पास भी स्मार्टफोन हो और वो इंटरनेट से कनेक्टेड, जब ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे क्या होगा कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज होना चालू हो जाएगा। सर जैसे मेरे बात हुई थी कि लेट्स टेक 5 थिंग्स एटलीस्ट कि ये हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में करेंगे। एक आपका एजुकेशन पकड़ लीजिए, उसको हमें सबको करना है, सबको शिक्षित करना है। सेकेंड इज वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत सारे हैं जो सोलोप्रेन्योर्स है, कुछ मतलब लास्ट 16 to 19 हमारे स्टार्टअप इंडिया के एक इंटरनेशनल समिट हो रहा था एंड वी वर डिस्कसिंग कम्प्लीटली 1 आवर कि देयर आर अराउंड 80 मिलियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में जो सिर्फ सोलोप्रेन्योर्स हैं, अकेले ये कर रहे हैं, सोलोप्रेन्योर्स हैं, और उनको एक्चुअली कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए। वो कुछ भी कर रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वो कर ही रहे हैं, बट उनको कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए कि उनका सामान खरीदेगा कौन। तो उसके लिए एक मार्केट प्लेस चाहिए, उसके लिए एक ट्रेडिंग चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे जो पेमेंट गेटवे है वो इंडिया आज वर्ल्ड की नंबर 1 है। UPI जो हमारे है वो हमारे रिवोल्यूशन है इंडिया का। अगर इसको हम कनेक्ट कर दें आपके ई-कॉमर्स साइट के साथ और उसको हम मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ मिला के मैं मोबाइल कॉमर्स अगर दे दूं, तो कोई भी बंदा कहीं पे भी बैठ के इंटरनेट कनेक्शन, बिना इंटरनेट कनेक्शन भी वो बिजनेस कर सकता है। अगर आप ब्लॉकचेन की बात करें, अगर आप अफ्रीका चले जाएंगे, उनके पास इतना नेटवर्क नहीं है, बट आज भी वो बैठ के वहाँ पे वोटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं विदाउट इंटरनेट। तो इट्स बिकॉज उनके पास ब्लॉकचेन अवेलेबल है, राइट? तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इसमें वही है कि चैलेंजेस दोनों तरफ से है। अगर आप पूरा ओपन फ्रीडम दे देंगे तो उसका मिसयूज होगा। जैसे फार्मर्स अभी चल रहा है, लास्ट 3 महीने से कंट्रोल नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट, उसका मिसयूज होगा। बट अगर हम सही तरीके से एजुकेट करके फिर उसको यूटिलाइज करना सिखाए कि कैसे उसको अच्छे तरह से कर पाए, तो इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। डेफिनेटली। हीरालाल साहब, क्योंकि आप एकदम स्ट्रेट बात करते हैं और ब्लंट बात करते हैं, अगर हम आपसे ये पूछें कि हम लोग शहर में आ जाते हैं, गाँवों से आए हैं और कई बार गाँव के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखते हैं, कविताएं लिखते कि गांव का जीवन तो क्या बात है, फेसबुक में आप बढ़िया बढ़िया कविताएं सुन सकते। लेकिन अगर उनको मौका मिले या कभी जाने का टाइम मिलता है तो कोई गांव जाना नहीं चाहता है, कोई गांव में रहना नहीं चाहता है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। तो आप इस हाइपोक्रेसी, मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आप जो नहीं जाना चाहते उनके कारण क्या है, और क्या हो सकता है उसका निवारण। मैं इस हाइपोक्रेसी पे आपका जवाब जानना चाहता हूँ, आपके व्यूज जानना चाहता हूँ। आप एकदम स्ट्रीट बात करते हो कि मैं गांव का हूँ। बहुत सारे लोग हैं, हमें बड़ी शर्म आती है बोलने में कि मैं गांव में था, मैंने गांव में ये किया। तो इस हाइपोक्रेसी, ये जो दोहरी सोच है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में अगर ये दोहरी सोच नहीं निकली तो मॉडल गांव शायद ना बन पाए, क्योंकि आप इसी पे काम कर रहे हैं कि आप सोच पे हथौड़ा मार रहे हैं। यू आर हैमरिंग द सिस्टम कि नहीं, गांव भी उतना ही हमारे लिए यूजफुल है, उपयोगी है, वहाँ का जीवन उतना ही अच्छा है, उतना जितना शहरों में है। तो ये जो हम सब लोग हैं, हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब लोग ऐसे सोचते हैं कि गांव अच्छा है, लेकिन गांव की बातें अच्छी हैं लिखने में, लेकिन जब हमें जाने की बात होती तो हम नहीं जाते। तो ऐसे लोगों को आप कैसे ब्लंट मैसेज देंगे? देखिए, इसका आंसर कोविड ने दिया है। कोविड ने, जो गांव छोड़ के आए थे शहर की तरफ, तो शहर नहीं झेल पाया, लौट के गए बुद्धू घर को। वही बुद्धू वाला घर, गांव देहात जिसको हम गड़बड़ कह रहे हैं, नहीं जाना चाहते, उसने उनको सहारा दिया। तो भाई बड़ा तो वही होता है जो मुसीबत में सहारा दे। कोविड ने ये साबित कर दिया है कि गांव ही हमारा मॉडल है
और अब तो शहर में भी गांव को काफ़ी एक कॉन्सेप्ट बहुत लोगों का आया है। अच्छा, और एक बात देखिए, महेश जी बैठे हैं, जरा खड़े हो जाइए, आप अपने जरा चेहरा दिखाइए सबको। ये देखिए, मैं इनको नहीं जानता, और ये बैठ जाइए, अभी मैं इनके बारे में बताता हूँ। ये कि यहाँ नंदा सर थे, नंदा सर हम लोग जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता था, लेकिन नंदा सर अभी बोल रहे थे, देखे होंगे, यहाँ के बहुत अच्छे अफसरों में गिनती है। जैसे इन्होंने मेरा मॉडल गांव पढ़ा, मुझे फ़ोन दिया, कहीं बात करो मुझसे, हमने बात किया, कहीं ने तेरा बहुत अच्छा है, और मैं तेरे पास एक आदमी भेजता हूँ यूपी वाला, मेरा चेला है, और सुभाष बोस पे एक काम करता है, भेजता है। वो 2 बार मेरे पास आए, अभी मैं नहीं इनको पहचानता, देखते कहीं तू ही तो है हीरालाल, मैं तुझे जानता हूँ। मॉडल गाँव, जब सोच अच्छी होती है, जब नीयत अच्छा होता है, जब इरादा अच्छा होता है, तो दुनिया बदल जाती है। क्या एक बात और, मैंने एक उदाहरण दिया, नंदा सर को मैं नहीं जानता था, ये मिल गए मुझे। ये जो बाबूजी हैं, ये स्मार्ट विलेज का, एक स्मार्ट विलेज मूवमेंट का एक कॉन्सेप्ट चलता है। मैं एक दिन इसे पढ़ रहा, हमने कहा ये विलेज गांव के नाम पे मैं गूगल देवता से दोस्ती करता हूँ कि बताओ हमारे जमात के लोग, हमारे बिरादरी के लोग कहाँ हैं। तो स्मार्ट विलेज मिला, मैं उसमें देखा तो उसमें सोलोमन डार्विन नाम के एक प्रोफेसर हैं, कौन यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका, वो इसको चलाते हैं। तो मैंने सोचा ये अंग्रेज होंगे, लेकिन पता चला वो यहीं के हैं। कहाँ? इंडिया के। चले गए कोलंबिया में, लेकिन उनकी धड़कन गांव में है। और उनको चलाता कौन है? डॉक्टर अनिल दास शाह जी हैं, वो भी यहीं शायद गुजरात के ही हैं क्या। और ये लोग स्मार्ट विलेज मूवमेंट चलाते हैं, उसके ये स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। ना ये जानते थे, ना मैं जानता था। और मैं आपको बता दूं, अगर मेरे काम में और मेरे कॉन्सेप्ट में ताकत ना होती, चुंबकत्व तो नहीं होता, तो ये दोषी जी मुझसे मिलने नहीं आते क्या। ये अमेरिका वाले, मैं गांव का देहाती हूँ, मैंने इनको खींचा है क्या। ये खींचे आए हैं, कह रहे थे कि मैं आऊँ तो मुझे वो घुसने ना दें यादव जी, पूछो लिमिटेड होता। हमने कहा हम यादव जी को मना लेंगे, आप आइए और घुसिए। मेरा कहने का सेंस ये है कि ये कोई मैं नया खेल नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा टेस्टेड ट्राइड मॉडल। हम सुना करते थे किरण बेदी तिहाड़ जेल में ये अवार्ड लेके आई, मैंने बिना 1 रुपया बाहर से लिए मैंने अपने जेल को तिहाड़ जेल बना दिया क्या। नंबर 1 72 जेल है यूपी में, नंबर 1 का। देयर इज विल देयर इज वे। और इस समय सबका फोकस, बिजनेसमैन का फोकस, पॉलिटिकल फोकस, एडमिनिस्ट्रेशन वाला तो बिना कूड़े का पेड़ा है, जैसा होगा वैसे चाहे। हम लोग तो जिधर ठेल दिया जाता है ना उधर ही चल जाते हैं। हमारी सोच कुछ अब बची नहीं है, और यही हमारी नीयत है। कहते हैं ना, जैसी सरकार वैसा प्रशासन, जो सरकार कहे वही हम करेंगे, हमारा कुछ ही नहीं है। भाई सरकार ने कहा हमारे यहाँ ये दीनदयाल जी वाला करो तो हम दीनदयाल जी वाला करते हैं, उन्होंने कहा नहीं ये राम मनोहर लोहिया वाला करो तो हम वो करने लगते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय पूरे बिजनेस अब शहर में नहीं रहा। अगर है बिजनेस तो 2% पे आ गया प्रॉफिट, तो अब गांव की तरफ बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लोग गांव की तरफ, सारे लोगों का गांव में फोकस है। इसलिए ये बात का जब माहौल बदल गया है। आपका जवाब है सर। थैंक यू वेरी मच। हमें जिस तरह के जवाब की उम्मीद थी आपने उससे भी अच्छा जवाब दिया, और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि ऐसे वक्ता और ऐसे बेबाक बात करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। हमें तो नहीं मिलते हैं ज़्यादा कि इतनी बेबाक बात करें, मतलब दिल खोल के बात करें बिना कुछ सोचे हुए। नो डिप्लोमेसी, नो थिंकिंग अदर वे, जो भी दिल में आया, दिल से दिल की बात। सर इसी बात को अगर हम आपसे आगे बढ़ाएं, जो हीरालाल साहब से बात किया था कि अभी भी हम शहर में रहते हैं लेकिन हम जाना नहीं चाहते, तो अगर मैं उस कारण की तरफ जाएं कि क्या कुछ गाँवों के ऐसे बड़े रिजिड सिस्टम हैं जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स होते हैं गाँवों में भी, पंचायत्स होती हैं, सम नाम भी दे सकते हैं उनको, तो वो लोग क्योंकि शहर क्या है, लेवलर है। शहर में टेक्नोलॉजी में चाहे गरीब आया है, चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति यहाँ आया है, उसको यहाँ पे सब साथ में बैठ के चाय पी लेते हैं, सब साथ में बातें करते हैं। लेकिन जब गाँव में जाता है वही अभी भी पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ पे अच्छे पैसे कमा रहा है, तो वहाँ पे उसको वो सम्मान कई बार नहीं मिल पाता है जो रिजिड कास्ट सिस्टम है या सोशल सिस्टम है। तो इसमें आपका आप लोगों का क्या एक सेट रूल्स में ही है कुछ काम, या फिर ऐसा भी कुछ कोशिश करते हैं कि नहीं इन लोगों को कुछ ना कुछ जो अर्बन और रूरल पुअर जिनको सम्मान नहीं मिल रहा, हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे कि जिनको किसी तरह से सम्मान नहीं, इवन ज़्यादा पैसा कमाने के बावजूद भी गांव में जाते हैं तो वो वैसे ही ट्रीट करते हैं उनको कि नहीं इनको चारपाई में नहीं बैठने देना है या पानी नहीं देना है। तो इस तरह की जो समस्या है ये भी अर्बन शहरी डिवाइड का कारण है क्या?
देखिए, इस तरह की समस्या जो है, हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काल से भारत में अनेक अलग अलग कारणों से जो है वो उत्पन्न हुई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसको बिल्कुल स्वीकार करने के लिए देश ने मना कर दिया, और इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है कानून बने हुए हैं। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी लॉ है, और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है, और इसके अलावा और भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉज हैं। तो लॉज तो हैं, अपनी जगह हैं। अब देखना यह है कि उन लॉ को यू हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉ इन द लेटर एंड स्पिरिट। तो उसके लिए समाज की और उस राज्य की, देश की वो जवाबदारी है, उसके तंत्र की जवाबदारी है, उसके पुलिस तंत्र की जवाबदारी है, प्रशासन की जवाबदारी है कि उसको लेटर और स्पिरिट में वो अमलित करे। जहाँ तक कुछ पंचायत, जैसे खप पंचायत हुई या इस तरह के और कुछ ग्रुप्स हुए, डोमिनेंट कास्ट, बहुत जगह एक एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म है डोमिनेंट कास्ट, तो आप उस किसी भी एंथ्रोपोलॉजी या सोशोलॉजी की बुक में पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द मिलेगा आपको। लेकिन उसका जो है असर गांव में धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हुआ है, लिमिटेड हुआ है, और होना उसका वाजिबी है, लाजमी है, क्योंकि साइंटिफिकली ऐसी चीज़ें जो है वो आप देखेंगे तो अगर रहेंगी तो वो देश, जिस देश में ऐसी चीज़ें रहेंगी तो वो देश की ग्रोथ जो है वो स्लो रहेगी, वो देश पीछे रहेगा। अगर आपको साइंटिफिक तरीके से लॉजिकली आगे बढ़ना है तो स्वाभाविक है कि इस तरह की चीज़ों को कम करके लॉ बेस्ड सोसाइटी बनानी पड़ेगी। तो वो लॉ बेस्ड सोसाइटी कब बनेगी? जब इस तरह के सारे लॉ जो मैंने अभी बोले उनको लेटर और स्पिरिट में हम लोग इम्प्लीमेंट करें। और हम ही लोग हैं, पूरा समाज है। एक्चुअली सोसाइटी गेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन इट डिजर्व्स, वेरी कॉमन अटैच है, ये बहुत पुराना ये कहना है। तो सोसाइटी जब चाहेगी कि लॉ स्ट्रांगली, अब पॉक्सो लॉ के लिए डिमांड आएगी इसको ज़बरदस्त आप इम्प्लीमेंट करिए, तो अनेक राज्यों ने उसमें चेंज किए, उसमें केंद्र ने चेंज किए, उसको बहुत स्ट्रांग बनाया कि हम वीमेन का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल इस देश में नहीं चलने देंगे और उसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ बनाया जाए, उसके लिए जल्दी से जल्दी न्याय जो है दिया जाए। तो वो जब चाहते हैं, तो इसलिए जो सोशल जस्टिस है जहाँ तक, उसमें मैं ये मानता हूँ कि समाज भी आज बहुत जागरूक हुआ है और इसको और आगे ले जा रहा है, और कोई कारण नहीं है कि ये अभी यहीं रुके। जब तक कि बिल्कुल समानता नहीं आ जाएगी, विलेजेस में भी ये समानता ना आ जाए, तो और इसके लिए जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, आज भी यहाँ पंचायत के इलेक्शंस हैं गुजरात में, यहाँ पे तालुका पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं और महानगर और नगर पालिकाओं के हो रहे हैं और ज़िला पंचायतों के हो रहे हैं, कुछ ही समय बाद ग्राम पंचायतों के होंगे। तो ये इलेक्शन किस लिए हो रहे हैं कि उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पंचायत में आए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और वो सब भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। वो कब कर पाएंगे? जब उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। वहाँ पे भी सामाजिक न्याय, हर विलेज में, हर गांव में सामाजिक न्याय समिति है जी, और उसके पास ये भी एक सत्ता है, उसके पास ये भी एक विषय है कि सामाजिक न्याय हो रहा है कि नहीं वो देखे, और ग्राम पंचायत को उसकी रिपोर्ट करे और ज़िला पंचायत को रिपोर्ट करे। बिल्कुल तो सर। इस तरह से इसमें सामाजिक न्याय के बारे में, सामाजिक समरसता के बारे में बहुत स्कोप है और इसके बारे में काफ़ी हुआ है और हो रहा है। समरस का एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए जब अभी के माननीय पीएम साहब जब यहाँ सीएम थे, तो उन्होंने कि जहाँ इलेक्शन के कारण, क्योंकि उन्होंने माना कि समाज शायद ज़्यादा उसमें विक्षेप पड़ता है, तो उन्होंने कहा जहाँ इलेक्शन नहीं होगा वहाँ हम उसको समरस विलेज डिक्लेयर करेंगे और उसको हम जो है इनाम देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, 5 लाख देंगे, सो दैट वो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर सके। तो अल्टीमेट एम है कि समाज में समरसता बढ़े। समरस हॉस्टल्स का मैं एक एग्जांपल, हमारे पास इस समय 20 समरस हॉस्टल हैं और उन हॉस्टल्स में करीब 15,000 बच्चे जो हैं वो, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एससी-बीसी और ओपन जनरल सब एक साथ रहते हैं और उनका हम सारा अलॉटमेंट किस कमरे में कौन रहेगा वो कंप्यूटराइज्ड है। तो किस दैट इज द बिगिनिंग, मिक्सिंग। तो इस तरह से ये आगे काम बढ़ रहा है और बहुत जोर शोर से बढ़ रहा है। कोई कारण नहीं है कि ये अटकेगा जी, ये एंड तक जाएगा जहाँ इसे ले जाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। लेटर तो था ही, स्पिरिट की आपने जो बात की बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि लेटर तो हमेशा रहते हैं बट हमारे पास स्पिरिट होनी चाहिए सभी की, समाज की और काम करने वाले लोगों की। स्पिरिट से काम ज़्यादा होता है।
सबका काम ज़्यादा स्पिरिट वाला है, लेटर तो ठीक है। हम लोग वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आप लोग अगर किसी के पास भी हमारे किसी भी स्पीकर के लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो तैयार रखिए। अभी प्रवास जी से हम इनसे पूछते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम 2 क्वेश्चन लेंगे, देन विल फिनिश इट। प्रवास जी, अगले 5 सालों में क्योंकि गाँवों की, हीरालाल साहब ने बताया कि गाँव में ही सबका ध्यान है अभी, चाहे वो सरकार है चाहे वो जो भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों में आईटी इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली अगर आपके तरह का जो बिजनेस है, आईटी एनेबलर्स जो हैं, वो लोग अपने आप को आप कहाँ देखते हो? आप अपनी कंपनी, अपना जो तरीका है वो अपने बारे में बताइए। सर ऑलरेडी इसमें हम काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। सो हम लोग जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग बनाते हैं 36 आवर्स का, किसी के पास आइडिया है वो डायरेक्टली यहाँ पे आए, 36 आवर्स वो एक कमरे के अंदर रहता है, चाहे वो आइडिया पर्सन हो, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, चाहे इन्वेस्टर हो, सब एक साथ 36 आवर रहते हैं और वो आइडिया को एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करते हैं, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है, जो इन्वेस्टर्स को दिखा पाएँ या इंडस्ट्री लोगों को दिखा पाएँ, या फिर हमारे जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, पंचायत है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे दिखा पाएँ। अभी हमने एक स्टेप उससे आगे लिया है। सो वी आर क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस जोन, जहाँ पे मे बी 200-300 रूम्स होगा। कॉर्पोरेट पीपल विल गो एंड स्पेंड 7 days देयर। वो गांव के साथ रहेंगे, वहाँ पे दे विल वर्क as well as they will have fun। एक जगह में को लिविंग एंड को वर्किंग कॉन्सेप्ट वी स्टार्टिंग कोहर्ट। तो ये जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके शहर में जो चीज़ हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली गांव में होना स्टार्ट हो जाएगा एंड देयर विल बी ए कोरिलेशन स्टार्ट, थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड थिंग ये है जो आप बोल रहे थे कि ये चीज़ नहीं हो रही, मैंने उड़ीसा एंड झारखंड में आई कनेक्टेड वन गर्ल, शी वाज एक्चुअली डूइंग PhD इन स्कॉटलैंड एंड बाय नेट में हमारे कनेक्शन हुआ बिकॉज आई ऑल्सो डिड माई MBA फ्रॉम UK। तो जब मैं वापस आया आई वेंट देयर एंड यू वोंट बिलीव शी एक्चुअली स्टार्टेड 90 acre लैंड, एक कोऑपरेटिव मॉडल लेके सारे फार्मर को इकट्ठे करके शी स्टार्टेड डूइंग ऑल द कल्टिवेशन। मतलब उसके अंदर ऑलमोस्ट 26 टाइप्स ऑफ राइस है, उसके अंदर पूरा पंच है, उसके अंदर मछली बना ये होते हैं, पूरा एग्रीकल्चर बनाया हुआ। तो ये चेंज हुआ है धीरे धीरे वो मॉडल को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया एंड वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने स्टार्ट किया। सो जो रीस्केलिंग एंड स्किल डेवलपमेंट वो स्टेट नाउ दे हैव स्टार्टेड एंड ऑल द IAS ऑफिसर्स OAS ऑफिसर्स जो उड़ीसा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव है वो लोग अभी वहाँ पे आते हैं, वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं एंड वो लोग जाके वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये सारे चीज़ें ऑलरेडी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हम इंस्टेड ऑफ सेइंग इट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इफ वी से इट कम्युनिटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर वो एथिक्स चेंज हो जाएगा, उसका मायना चेंज हो जाएगा। जो कंपनीज अभी 2% प्रॉफिट जस्ट फॉर टैक्स पर्पस बचाने के लिए दे रहे हैं, वो एक्चुअली कम्युनिटी की तरफ काम करना स्टार्ट कर देंगे एंड उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग मंडे टू फ्राइडे सब लोग काम करते हैं, सबको अपना चलाना है, बट सैटरडे संडे दे आर फ्री, दे कैन एक्चुअली एजुकेट द चिल्ड्रेन, दे कैन रीच आउट टू द गाँव में जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हो सकती है। थैंक यू सर। ब्रीफ आंसर चाहिए 30 सेकेंड में भी 1 मिनट। हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमारे लिटरेचर फेस्टिवल है जहाँ पे हम आर्ट और कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप जो पुराने शहर की जो गांवों की आर्ट एंड कल्चर है जहाँ पे शाम को लोग बैठ जाते थे, अपने भांग वगैरह पिएंगे, मजीरे बजाएंगे और वो ढोलक बजाएंगे, जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक कल्चर है, उसको अभी आप कहाँ देख रहे हैं? वो बढ़ रही है, ख़त्म हो रही है? शॉर्ट आंसर प्लीज़। वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, मेरा ऐसा मानना है। उसमें जो राज्य सरकार भी एक्टिव है और बहुत सारी जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी उसमें एक्टिव हैं और उनको बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कच्छ की बात करें तो कच्छ में इतना सब आर्ट का काम, वहाँ पे उनका आर्टिस्ट्री, और कुछ जगह देखिए साड़ियाँ बनाने का काम गुजरात में, जैसे पाटन में जाइए, जैसे कच्छ में भी उनका बांधनी का काम या और इस तरह के काम, और कुछ जगह कुछ हमारे जो कास्ट के लोग हैं वो गाने बजाने में बड़े महारत उनका होता है, तो उसमें और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, तो इस तरह की जो हमारी कला, हमारा जो दूसरा प्राचीन काम है वो बना रहे और उसके साथ उनको मार्केटिंग की भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, जैसे हमारे डिपार्टमेंट से भी मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए अगर उनको ऐसा करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में दे रही है, हमारे डिपार्टमेंट में दे रही है,
उसके बाद उनको जो है वो बैकएंड उनको कनेक्शन मिले और फ्रंट एंड कनेक्शन मिले, मतलब मार्केटिंग का भी स्कोप रहे, तो उनकी मार्केटिंग भी हो उनकी बनाई चीज़ों की, और उसमें कला संस्कृति उसकी झलक भी बनी रहे। जी सर। और उसके कार्यक्रम जो हैं हमारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट है या कल्चरल डिपार्टमेंट है, वो लोग भी उसमें एक के बाद एक काम करते हैं। हम देख रहे हैं इतने प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल हो रहे हैं या नेशनल हो रहे हैं, स्टेट लेवल के, उसमें कोई ना कोई ग्रुप जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है। वो आके वहाँ का लोकल डांस भी करेगा, कुछ अगर उनकी गीत संगीत होगा वो भी करेगा, और प्रदर्शनी होगी तो उसमें अपना बनाया हुआ काम भी दिखाएगा। तो मेरा ये मानना है ये और जैसे जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, रोड्स अच्छी हो रही हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो इस तरह की चीज़ें और बढ़ रही हैं और स्ट्रेंथन हो रही हैं, जो बहुत ज़रूरत है, और मॉडल गांव को वो सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करेगी, ऐसा मेरा मानना है। हीरालाल साहब, वेरी ब्रीफ आंसर। गांव की जो ये संस्कृति है जिसमें आर्ट कला और पर्टिकुलरली यूपी में ये बहुत ज़्यादा होता है, मैंने देखा था, तो आप अभी उसको कैसे देखते हो? देखिए, गांव का जो कल्चरल एक्टिविटी, खेलना, गाना बजाना और गेम, अलॉन्ग विद द गेम, ये हमें सोशलाइजेशन देते थे, हार में कैसे जीना चाहिए सिखाते थे। देखिए, इसमें थोड़ी गिरावट आई है, तो हमारा ये कि इसमें जो हमने विलेज मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें हमारा एक पॉइंट है कि गांव के कल्चरल एक्टिविटी, गेम को और भाईचारा को कैसे बढ़ाया जाए। हम कबड्डी को करेंगे जिससे वो ज़मीन में गिरे, मिट्टी में गिरे, उसे पता लगे, ठीक है। तो इस पर ये हमारे गांव का एक पर्टिकुलर इशू है और इसको बढ़ाना है। एज ये कलेक्टर मैंने इस प्रयोग को भी किया है। मेरे जितने फंक्शन होते थे उसमें मैं एक लोकल गेम का एक गेम टीम बना देता था, वो अखाड़ा ना वो सब चलता रहता था, तो इससे जो है हमारी पर्सनालिटी निखरती है। जी यस, तो ये करना है। प्रभाष जी, आप टेक्नोलॉजी वाले हो, आपका आर्ट कल्चर और रिलेटेड से क्या संबंध है? 30 सेकेंड आंसर प्लीज। सर, मैं तो अभी एक्चुअली ये ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे वाइब्रेंट गुजरात ऑलरेडी यहाँ पे हो रहा है एंड इट्स ऑलमोस्ट 10th और 12th एडिशन, तो हमारा हर गांव के अंदर एक्चुअली इन्वेस्टर समिट होना चाहिए, चाहे वो वर्चुअली हो चाहे ऑफलाइन हो, बट वो होना चाहिए। वो होगा तो जितने एंटरप्राइजिंग दिमाग हैं, सर जैसे बोल रहे थे गेम के, बहुत सारे लोग एजुकेशन के काम कर रहे हैं, कुछ लोग एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो दे कैन एक्चुअली गेट फंडिंग। एक बार आपको दो फ्रीडम चाहिए, एक तो इंटरनेट फ्रीडम चाहिए, सेकंड मॉनिटरी फ्रीडम चाहिए। विदाउट मनी अवेलेबिलिटी कुछ नहीं हो सकता है, तो हमें उसके लिए भी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है वो लोग आके यहाँ पे कनेक्टेड, तो क्या होगा, जो हमारे कला है, हमारे संस्कृति है, वो धीरे धीरे इंटरनेशनल जाएगा। एंड वहाँ पे जब हम कोई भी छोटे से क्राफ्ट देख लीजिए, अभी टॉय फेस्टिवल हो रहा है, देयर आर 80 करोड़ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो ये धीरे धीरे सर बढ़ेगा। राइट। Manoj Saab, Dr. Hiralal Saab, Prabhas ji, it was a real pleasure talking to you all. It was very informative session. Thank you all for being here and waiting for the lunch to take place. There were 1 or 2 questions. Yes, please. Can anybody hand over the mic? आप लोगों ने जो इतने अपने विचारों को प्रकट किया है उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। मेरा प्रश्न डॉक्टर हीरालाल से है। ना शॉर्ट परिचय दे सकते हैं, नाम एंड? मेरा नाम है डॉक्टर अशोक सक्सेना जी। मैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से सुपरएनुएट हुआ हूँ जी। मैंने थीसिस किया है कनाडा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कई साल वहाँ बिताए, उसके बाद में भारत देश में आया। अब मैं इनका मॉडल विलेज का कंसेप्ट सुन रहा था। हर चीज के पीछे मॉडल विलेज क्यों, मॉडल शहर भी हो सकता है, उसके पीछे आधार है मॉडल आदमी का। ह्यूमन बीइंग हैज टू बी ए मॉडल वन, यू पुट हिम एनीवेयर। सो आपने जिस बांदा गांव में या बांदा डिस्ट्रिक्ट में जो कार्य किया है, मॉडल आदमी बनाने के लिए कुछ कार्य किया है? प्रश्न नंबर 1। एक सेकंड please, you are free, you are a youngster, you have a long way to go. And the second question is, शहर और गांव में अंतर क्या होता है? बेसिकली मेरा मानना है कि शहर प्रकृति से दूर चले जाते हैं, जबकि मनुष्य खुद एक प्राकृतिक जीव है, लेकिन अपने आसपास ऐसा ताना बाना बोल लेता है, ऐसा कंक्रीट का जंगल तैयार कर लेता है,
कि प्रकृति से बहुत दूर चला जाता है और प्रकृति के गुणों से भी बहुत दूर चला जाता है। जब इन गुणों से आप दूर चले जाते हैं तो आप मॉडल आदमी नहीं रहते हैं, आप में वो सारी बुराइयां आ जाती हैं जो प्रकृति ज़्यादातर प्रकृति में नहीं होती हैं। क्या इस बारे में प्रकृति से जोड़ने के लिए आपने गाँव में कुछ कार्य किया है? अगर ना किया है तो हमने कुछ यहाँ गुजरात में विलेज बनाए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। थैंक यू। देखिए, जो आपने बात कही कि मॉडल आदमी, हमने पहले ही शुरुआत की थी कि हम सॉफ्टवेयर बदल रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर किसका बदल रहा है? आदमी का बदल रहा है। और जब उस गांव के रहने वाले सारे आदमी का सॉफ्टवेयर बदल के वो मॉडल, अच्छी सोच और डेवलपमेंट की बातें, पॉजिटिविटी करेगा, तभी वो गांव बनेगा। तो मेरा पहला जवाब है कि हमारा फोकस ही आदमी है, उसके सॉफ्टवेयर को हम बदल रहे हैं और उसी को मॉडल बना रहे हैं। जब उस गांव का रहने वाला हर आदमी मॉडल बन जाएगा तभी मॉडल गांव बनेगा। दूसरी बात, देखिए, बिना प्रकृति के, अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया तो मैंने वहाँ मैं वही बोल रहा था एक ऑडियो कि जल, जंगल और ज़मीन, यही हमारे 3 आधार हैं। और जल और जंगल, वृक्षारोपण में प्रकृति के लोगों को पेड़ जियाओ अभियान हमने चलाया था। हम लोग पेड़ लगा देते हैं और मर जाता है, जियाने की कोई बात ही नहीं करता। तो हमने उसको, ये बहुत लंबा टाइम हो गया है, पेड़ जियाओ अभियान चलाया है। ये बाकायदे इसके यूट्यूब है। ये पानी वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, मैंने बिना किसी से चवन्नी एक्स्ट्रा लिए, जितना 75 जिले हैं, 75 जितना कलेक्टर को मिलता था उतना मुझे मिला। मैंने 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी को ऊपर किया और पेड़ लगाओ अभियान के जगह पर पेड़ जियाओ अभियान चला, बहुत पॉपुलर हुआ। सो दैट कि हम प्रकृति के लिए, अच्छा, मैंने बहुत सारे काम किए। ये नाच गाना भी प्रकृति के नज़दीक ले जाना है क्या? तो जो आपका दूसरा पार्ट है उस पर ही मेरा टोटल फोकस है। और अगर आपसे मुझे, अब मैं सुनिए, और जो आपका, अगर मुझे कुछ, मैं आज लर्निंग में ही आया हूँ और अगर मुझे आपसे कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं उसको भी इंक्लूड करूँगा। जैसे मैंने इनको पकड़ा, इसे मैं सबको पकड़ रहा हूँ। हाउ टू रिफाइन माई सेल्फ, हाउ टू अपग्रेड माई सेल्फ। मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर हीरा राजेश से है। पैनलिस्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मुझे ये कहना है कि यूपी और बिहार ने जितने IAS अधिकारी भारत को दिए हैं, गुजरात ने उतने नहीं दिए हैं। एज वेल गुजरात ने जितने बिजनेसमैन दिए हैं वो ऊपर नहीं दे रहा है। अब गुजरात में ये है कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो फॉरेन में रहते हैं, उन्होंने यहाँ के विलेजेस को अडॉप्ट किया है, उनको डेवलप किया है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, उससे कहीं ज़्यादा काम समाज ने खुद ने किया है। तो मैं आपसे ये मतलब जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी कोशिश ऐसी है कि यूपी के जैसे कोई हो जो बिजनेस में हो या IAS अधिकारी जो बहुत आगे निकल चुके, वो वहाँ के गाँव को दत्तक ले और उसको डेवलप करे? क्योंकि तभी जो ये IT का सेक्टर जो बढ़ाना है, बहुत सारे US में है यहाँ के गुजराती, वो पूरे के पूरे का वो एडॉप्ट कर रहे हैं। तो वहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ काम हो तो ये। हाँ, सुनिए मैडम जी। मैडम, मैं आपको बता दूं, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है और मैं इस पर एक सोशल वर्क कर रहा हूँ कि जब एक IAS अफसर, ठीक है, मैं टॉप की ही बात कर रहा हूँ, नीचे बात करना ठीक नहीं है, कि जब जो भी, चाहे चपरासी हो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, ठीक है, जब वो 55 साल, जब हम 25 साल पढ़ते हैं, 26 साल में नौकरी आ गए, 60 साल तक ये सब करते हैं। अब आपकी लाइफ 100 साल हो गई, हाँ। तो जब आप 60 साल बाद रिटायर हो जाएंगे तो कोई नमस्ते नहीं लेता है। क्यों? आपने जब नौकरी में थे आपने नमस्ते नहीं लिया, ठीक है ना? तो आपको 55 पर प्लान शुरू कर देना चाहिए कि व्हाट यू विल डू आफ्टर 60। इस 5 साल में वहीं जाना चाहिए और रिपे करना चाहिए जो आप कहना चाह रही हो। तो ये बिल्कुल सही बात है। इस पर तो मैं लोगों से अनुरोध भी करता हूँ, प्राइवेटली मोटिवेट भी करता हूँ। और अगर मुझे ये दाव मिलेगा, मेरे दिमाग में आपके क्वेश्चन का है कि मैं इसको टॉप लेवल पे रखूँगा कि जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें 55 के बाद छूट दे दिया जाए कि वो अपने गाँव को या अपने मोहल्ले को जा करके अडॉप्ट करें और बिजनेस की तरह बढ़ाएं। बहुत, क्या बात है। तो बहुत बहुत सही कहा आपने। और गुजरात का जो एक्सपीरियंस बोला है, तो यहाँ पे डेफिनेटली अडॉप्ट करते हैं और उसमें आगे काम करते हैं और उसकी वजह से जो है सफलता जो है कई गुना जल्दी आती है, बढ़ती है
और मेरे ख्याल से थोड़ी लिमिटेशन यूपी बिहार और इस तरफ की जो आपने बात करी वो ये भी है कि विदेश वहाँ से लोग इतने नहीं गए, उतनी परसेंटेज वाइज नहीं गई जितनी यहाँ से गई है. तो इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, बट वेरी करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटली ऑल्सो. देखिए मैं आपको बता दूं, ये मॉडल गांव पहले मैं अपने गांव शुरू किया. मैं 3 महीने से अपने गांव, जो आप कहना चाह रहे हो, सबसे पहले मैंने अपने गांव शुरू किया है. एक काम करते हैं मनीषा जी, करोगे तो प्रॉब्लम है, पर फिर भी पूछ लीजिए, हम लोग खड़े खड़े जवाब देते हैं. पूछिए प्लीज. 2004 में गुजरात का सबसे पहला गांव है, देश का ई ग्राम बना था वाड़ुकर. तो वहाँ से आज तक 17 साल हो गए, फिर भी 60% गाँव में ही कनेक्टिविटी मिली है. भावनगर के आसपास के गाँव में भी नहीं है. तो ये गाँव में ये विकास का डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन इतना स्लो क्यों होता है? शहरों में बहुत ही जल्दी हो जाता है. तो उसके लिए आप लोगों के लिए क्या थिंक प्रोसेस है? नहीं, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक कही है कि इतने साल में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शहरों में 4G आ गया. अब जैसे मैंने बीच में बात करी थी कि अभी विलेजेस में 3G भी पहुंचने में कई जगह 3G भी नहीं है, 2G चल रहा है. तो अब उसके लिए लेकिन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट जो मैंने बीच में बात करी थी वो ऐसा है कि सारे विलेजेस को कनेक्ट करेंगे. तो गुजरात में ऑलरेडी ब्रॉडबैंड का सिस्टम काफ़ी डीपली पहुँच रहा है. साइड बाय साइड जो प्राइवेटली जो है वो 5G अगर यहाँ पे आए या 4G तब तक हो तो वो भी साइड बाय साइड आपको पहुँचा के वहाँ तक ले जाना पड़ेगा. और अल्टीमेटली कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी, तो जैसे मैंने बीच में कहा था कि कनेक्टिविटी विल गिव द एक्सेस टू ए ट्रेजर ऑफ नॉलेज टू एवरीवन राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड. और गुजरात में गवर्नमेंट स्कूल्स हों, प्राइमरी स्कूल्स हों, प्राइमरी स्कूल्स में भी कंप्यूटराइजेशन जो है बहुत पहले हो गया. 2010-11 में मैं स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान का रहा, तो वहाँ पे तभी से ही कंप्यूटर जो है, हमारे जो CM साहब थे उन्होंने कहा हर सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लगाओ और उनको आप ये इंटरनेट कनेक्टिविटी भी पहुँचाइए. तो उसमें ड्यू टू वेरियस रीजंस जो है उतना प्रभावी वो इसलिए नहीं रहा कि सब नया था, सीखने वाले नए थे, सिखाने वाले नए थे. लेकिन आज की डेट में जो ब्रॉडबैंड से जो कनेक्टिविटी और स्पीड आएगी, जो कि एटलीस्ट 100 Mbps, वो तो 200-300 की बात कर रहे हैं जो ये ब्रॉडबैंड ले कर रहे हैं, बट 100 भी आएगी तो इट विल बी अ वेरी गुड स्पीड एंड अल्टीमेटली इट विल लीड अ रिवॉल्यूशन ऑफ नॉलेज. टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन विल क्रिएट नॉलेज रिवॉल्यूशन एंड विच विल अल्टीमेटली ओपन द डोर्स फॉर एवरीबॉडी. सो तब तक जो है एक कहते हैं ना कि समानता का अधिकार, तो इसमें भी एक समानता चाहिए, इसमें भी एक, दिस इज ऑल्सो ए फ्रीडम, दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट. So that definitely Thank you Manoj ji for such interesting Thank words. you sir, and thank you everybody for being a wonderful audience, wonderful questions. Manisha ji, thanks a lot for asking this question. Thank you so much. We have lunch, we have a lot of sessions coming up. Wish you all again a great day ahead. Yes, please go ahead. Before you guys go to lunch, Pinky ji will felicitate all the guest speakers with their respective mementos.